Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy Nagpur and I am Ansar Sir. Today we are going to start a new topic and it's a very important topic and a lengthy topic also, and students generally do not understand this topic very easily. So for this we will need enough drilling, enough practice, and we will study, I will deliver many lectures on this topic so that we understand this topic in the best possible manner. Understanding this topic will help you in your English, spoken English as well as in written English. It will help you in the 9th standard, in the 10th standard, in the 11th standard, in the 12th standard, in graduation also. In the first year you will have the same. So direct and indirect speech, change of narration or reported speech. This topic is there in the 9th standard, in 10th, in 11th and 12th also. So we have to keep on studying. You will only have to brush up this topic once you understand it. So this will help you in your present as well as future studies. So let's start the topic: direct and indirect speech. Direct and indirect speech. Speeches. So it is also called change of narration. Change of narration. Change of narration. See what happens. What is a direct speech? If the actual words, we will not write the definition of direct. Should we write? Okay, we will write. See what a direct speech is. If the actual words of the speaker are repeated, if the actual words of a speaker are repeated exactly the same way, if the actual words of a speaker are repeated exactly the same way as he or she spoke, then it is called the direct speech. Exactly the same way he or she or they spoke. The speech is then called the direct speech. It is called the direct speech. What does it mean? If the actual words of a speaker or speakers are repeated exactly the same way he or she or they spoke, then the speech is then called is called the direct speech. For example, Ansar Sir said, I am Ansar Sir. If suppose I tell you I am Ansar Sir and I tell you I am Ansar Sir, go and tell this to your father, and you, my student, will go to your father and you will say, Papa. Your dad will say, what happened, child? You will say, I am Ansar Sir. Your dad will give you a slap on your face. He will say, you are not Ansar Sir. Your teacher is Ansar Sir. You are XYZ. What will be his name or her name? So, you will have to say, so what have you done? You have repeated my words exactly. You have repeated the words which I spoke exactly the same way. So, you said, I am Ansar Sir. So, the words which I said and you have repeated exactly the same way are, I am Ansar Sir. So these are my exact words. Okay, these are my actual words. Sorry, not exact, actual words. So these are the actual words which I spoke. I am Ansar Sir. But what will you do? This is the direct speech. This is the direct speech. Ansar Sir said, I am Ansar Sir. So these are my words. Okay.
these are my exact words. I am Ansar sir. These are actual words. And indirect speech, its indirect speech will be, what is an indirect speech? In indirect speech, we modify the words spoken by a particular speaker. We change the words spoken by the speaker. We only want to find out, we only want to express what the speaker said. We don't use exact words, but we tell the same meaning, we convey the same meaning. For example, we can say, Ansar sir said that or let me give you another example. We'll take another example. It is, the direct speech will be, he said I am unwell. He said I am unwell. This is called the direct speech. And see, these words, I am unwell, are the actual words of the speaker. These are the actual words of the speaker here. These are the exact actual words. I am unwell. Who said this? This person said. Okay. And we want to express it in indirect speech. So the actual words of the speaker are these. He said, I am unwell. So this is I am unwell. These are the actual words of the speaker and they are repeated as they are. So it is direct speech. And what do we do in indirect speech? So in indirect speech, we will modify the sentence. We will say, he said. Now see, this said means he must have said this in the past tense, because it's not written he says. It's not written here he says. It is written he said, means in the past tense. It means he said this in the past tense. Said is the past tense of say. It is the past tense of say. So we will write he said, comma will be replaced by that. He said that he was unwell. What have we done? What have we done? He said, today, let me tell you, this day today when I am making the video is Saturday. So today is Saturday. Okay, and he said this. He said on, let us say, Friday. He said this on Friday. That's why I am using the word said. He said on Friday. He said on Friday, I am unwell. So on Friday, he said, I am unwell. Because on Friday he will use the present tense. He said, I am unwell. But we are reporting this speech on Saturday. Whatever he said on Friday is being repeated, is being reported to another person on Saturday. इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने फ्राइडे को बोला. फ्राइडे को क्या बोला? उन्होंने फ्राइडे को कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं. कब बोले उन्होंने? फ्राइडे. और फ्राइडे को बोले तो वो बीमार हूं बोलेंगे, क्योंकि फ्राइडे को बात कर रहे हैं तो फ्राइडे में प्रेजेंट टेंस में वो बीमार है उस दिन फ्राइडे. लेकिन उन्हीं की सुनी हुई बात अगर सैटरडे हम किसी और को जाके सुना रहे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, पता है, ही सेड ऑन फ्राइडे. वो अंकल ने कल बोले थे पास्ट टेंस में, क्या बोले थे? कि ही वॉज अनवेल, वो बीमार थे. अब है क्यों नहीं बोले बीमार? क्योंकि हो सकता है आज सैटरडे, आज वो अच्छे हो गए होंगे, कल वो बीमार थे फ्राइडे, इसीलिए उन्होंने कहा था, फ्राइडे को उन्होंने कहा था आई एम अनवेल, मैं हूँ बीमार. तो फ्राइडे उन्होंने मैं हूँ बीमार कहा था. सैटरडे हम थोड़ी बोलेंगे पापा वो बीमार है. नहीं, वो बीमार थे बिकॉज फ्राइडे बीमार थे. आज क्या मालूम, हो सका मर गए होंगे, ये ठीक हो गए होंगे. ओके,
So this is the indirect speech, and this word said is called the reporting verb. ठीक है, this word said is called the reporting verb. So the word said is called the reporting verb. Reporting verb. Reporting verb. I will tell you about the rules. So what is indirect speech? किसी ने कुछ कहा था, उसकी एक जगह की बात सुनकर दूसरी जगह लगाकर जाकर बता देना. एक जगह की सुनी हुई बात दूसरी जगह जाकर लोगों को सुना देना अपने शब्दों में. That is called indirect speech. And direct speech में क्या होता है? We repeat the exact words spoken by a person, and these exact words are put into the quotation marks. We put them under the quotation marks. अब इसके कुछ रूल्स हम देख लेंगे. ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट क्लास तो रूल्स पढ़ने में ही चली जाती है. द फर्स्ट क्लास जनरली इज स्पेंट इन टीचिंग द रूल्स ओनली. So these are the examples. If the actual words of a speaker or speakers are repeated exactly the same way he or she or they spoke, the speech is then called the direct speech. He said, I am unwell. उन्होंने कहा मैं हूँ बीमार. कब कहा? फ्राइडे. said यानी पास्ट टेंस को बोला. उन्होंने मान लो फ्राइडे को बोला, और वही बात फ्राइडे के बाद सैटरडे को हम किसी दूसरे को जाके सुना रहे, तो हम कैसे सुनाएंगे? हम बोलेंगे डू यू नो ही सेड ऑन फ्राइडे दैट ही वॉज अनवेल. उन्होंने फ्राइडे को कहा था कि वो बीमार थे. वो बीमार थे क्योंकि फ्राइडे, आज क्या है? सैटरडे, एक दिन आगे चला गया. तो लेट्स सी अदर एग्जांपल्स. शैल आई? नो, वी विल फर्स्ट डू वन थिंग. We will first write down the rules, then we will come to study the sentences. And फिर उसमें मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स दूंगा, आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, मजा आएगा. तो लेट मी रेज इट. डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है. इट इज ऑलमोस्ट नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम. कभी कभी नहीं पूछते डिफाइन डायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? कभी नहीं आता. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सी द रूल्स. रूल नंबर 1. Rule 1. If the reporting verb है ना, जिसको हम से said वगैरह ऐसा बोलते हैं, ठीक है, is in the present tense. If the reporting verb is in the present tense, or what shall I write? Simple present or present? Okay, present tense. And this present tense may be present perfect or simple present tense, or in the future tense. Then the tense or tenses under the quotation marks are not changed. What does it mean? I say, I say, I like apples. So here this reporting verb, this is the direct speech. We will denote the direct speech by DS. Okay, DS is our direct speech. So if the reporting verb is in the present tense or in the future tense, then the tense under the quotation marks will not be changed. Tense under the quotation marks will not be changed.
will not be changed. For example, I say I like apples, and what will be its indirect speech? IDS is indirect speech. We will write the indirect speech will be I say, this comma will be replaced by that. I say that. I will remain I. Like का अब हम क्या कर देंगे? Will it become LIKED? No. It will remain like. Apples. So what has happened here? The word say, reporting verb. This is the reporting verb, and it is in the present tense. ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है. तो कोटेशन मार्क्स में कौन सा वर्ब आया? कोटेशन मार्क्स में कौन सा वर्ब आया? तो कोटेशन मार्क्स में वर्ब आया लाइक. तो उसको चेंज नहीं करेंगे हम. ये देखो, इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उसको वैसे ही रखेंगे. लाइक का लाइक ही रहेगा, उसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे. अनदर एग्जांपल, ऐसे ही एक और एग्जांपल, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच, इसी को लिखते हैं हम. आई विल से, आई विल से, आई विल से. अब ये कोटेशन, ये 66, 99 जो है ना, इसको कोटेशन मार्क्स बोलते हैं. कोई टीचर्स लोग इन्वर्टेड कॉमर्स भी बोलते हैं. सो आई विल से आई लाइक एप्पल्स. आई विल से आई लाइक एप्पल्स. और इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो इट्स इनडायरेक्ट स्पीच विल बी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आई विल से, कॉमा की जगह दैट लगाएंगे हम. असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लगता है कॉमा की जगह. मैं बाद में समझाऊंगा इसका रूल. आई विल से दैट आई लाइक एप्पल्स. यहां क्या हुआ? तो यहां पर देखो, आई विल से, ये विल से क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है. दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब से, या इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. कौन से टेंस में है ये? तो फ्यूचर टेंस में है ना. ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है. विल से रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है. तो क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, तो ये जो कोटेशन मार्क्स में जो वर्ब आया, इन्वर्टेड कॉमर्स में कौन सा वर्ब आया? लाइक. वो चेंज नहीं होगा. यहां पर भी क्या आया? लाइक. चेंज नहीं हुआ. नो चेंज. नो चेंज इन टेंस ऑफ वर्ब. नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब. नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब. यानी कोटेशन मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमर्स में जो वर्ब आता है उसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं करते. उसको प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहने देंगे. आई विल से आ गया. विल से क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? फ्यूचर में है. तो विल से का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है. जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में रहता है तो कोटेशन मार्क्स में जो वर्ब है लाइक, वो लाइक का लाइक ही रहेगा. उसको ईडी नहीं लगाते, उसको पास्ट टेंस नहीं करते. अंडरस्टूड? उसको पास्ट टेंस नहीं करते. ये रूल नंबर 1 है. अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ गया होगा. फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? सबसे ऊपर वाले में आई से आई लाइक एप्पल्स वाले में आई से कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स आई लाइक एप्पल्स. तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब से जो है कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है. तो और इन्वर्टेड कॉमर्स में कौन सा वर्ब है? लाइक. आंसर लिखे इनडायरेक्ट स्पीच. तो क्या हुआ? आई से दैट आई लाइक एप्पल्स. लाइक को चेंज नहीं किए. क्यों नहीं चेंज किए? क्योंकि से जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है. सेकंड वाले एग्जांपल में जो लिखे हमने आई विल से आई लाइक एप्पल्स, उसमें लाइक का लाइक ही क्यों रखे? लाइक LIKED क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में, विल से है. वहाँ पर विल से है तो फ्यूचर टेंस में है. तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी वर्ब आता है, एक बार आए वर्ब या दूसरे 2-3 वर्ब्स आ जाए, कोई भी वर्ब का टेंस नहीं चेंज करते. उसको प्रेजेंट में ही रहने देंगे. जैसा है वैसा, जो टेंस में है वही टेंस में रहने देंगे उसको. अंडरस्टूड? अब दूसरा रूल देखो. दूसरा रूल, सी व्हाट हैव आई रिटन. इट इज रूल नंबर 2. रूल नंबर 2, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर मान लो से या विल से नहीं आता है, सेड आ जाता है, SAID सेड, पास्ट टेंस में, देन व्हाट विल हैपन? द टेंस ऑफ द वर्ब, और इफ देयर आर मोर देन वन वर्ब under the quotation marks, then the tense will change. Tense will change. Tense of the verb will change.
टेंस का मतलब टाइम होता है ग्रीक लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, दिस इज द डायरेक्ट स्पीच एंड इट इज आई सेड. नाउ दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. आई सेड, से नहीं है, विल से नहीं है, सेड है. आई सेड, कोटेशन मार्क्स में लिख रहे हम, आई लाइक एप्पल्स. I like apples. These are the exact words which I have said. These are the actual words I have said. ये मेरे exactly बोले हुए words हैं. मुझे पसंद है apples. Now its indirect speech will be IDS. The indirect speech will be I said that I liked apples. Quotation marks हटा देते. Remember, while converting the direct speech into the indirect speech, we remove the quotation marks. We remove the inverted commas. अब यहाँ पर देखो, ये जो said है, this is the reporting verb here. इसको क्या बोलते हैं? This is called the reporting verb. ये न्यूज़पेपर रिपोर्टर वालों की बात है. ये मंत्री जी ऐसा कहा, उन्होंने ये कहा है, he said this, he said that. So reporting verb कौन से tense में है? Past tense में. Since the reporting verb is in the past tense, अब यहाँ पर टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. लाइट जो है उसका देखो क्या होगा, लाइट पास्ट टेंस हो गया, है ना. और ये क्या था, लाइक कौन सा टेंस था? प्रेजेंट टेंस था. लाइक वॉज प्रेजेंट टेंस. और आंसर लिखते समय हमने क्या कर दिया, दिस लाइक वॉज चेंज टू लाइट, पास्ट टेंस, LIKED. सो इससे क्या पता चला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, देन द टेंस अंडर द कोटेशन मार्क विल बी चेंज्ड. अब उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके मैं रूल्स आपको लिखवा के दूंगा. बट बिफोर वी स्टडी दीज रूल्स, लेट अस स्टडी अ फ्यू रूल्स अबाउट प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन. या रूल चेंज ऑफ प्रोनाउन के रूल्स नहीं लिखा था, है ना, एग्जांपल पढ़ते पढ़ते आपको रूल्स लिखवा देता हूं. ये ध्यान में रख लो, आप साइड में लिख देता हूं मैं. चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन. हालांकि इसको भी रूल बोल के पढ़ाना चाहिए था, बट मैं ऐसे लिखा देता हूं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है. सो आई और वी change according to the speaker, change according to the speaker. ये बोलने वाले के हिसाब से बदलते हैं. These are first person pronouns. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I am the first person. आप मेरी बात सुन रहे हो, you are the second person. जो बोलता है वो first person, जो सुनते हैं वो second person. और अपन किसी तीसरे की बात करें, if we are talking about Ejaz sir who is not present here, so Ejaz sir will be the third person. मैं आपको बोल रहा हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन. आप मेरी बात सुन रहे हो डायरेक्ट मेरे सामने, तो आप सेकंड, डायरेक्ट सुन तो रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन. अपन एजाज सर के बारे में बात कर रहे हो जो यहाँ प्रेजेंट नहीं, तो एजाज सर हो गए थर्ड पर्सन. सो इन इंग्लिश देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होता है एंड वी होता है, क्योंकि हम बोलने वाले अपने आप के लिए यूज करते हैं. मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप के लिए आई यूज करूँगा, आई एम अंसार सर, आई एम टॉकिंग टू यू. अगर दो चार लोग एक साथ बोल रहे हैं तो वी आर द पीपल, वी आर टॉकिंग टू यू, फर्स्ट पर्सन. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. और आई का क्या हो सकता है, तो आई का आई भी हो सकता है, आई का ही भी हो सकता है, आई का शी भी हो सकता है ना. और अगर वी है तो वी का दे भी हो सकता है, वी का दे भी हो सकता है. इसको साइड में अलग से लिखते हैं. आई रहेगा तो ये हो जाएगा ऐसा, और वी रहेगा तो ये भी changes according to speaker. ये अभी आपको समझेंगे नहीं अच्छे से. You will not understand these rules so easily. जब अपन examples पढ़ेंगे तो then you will understand these rules very easily. ठीक है. अब ये formality है इसलिए मैं लिख के दे दे रहा हूँ. तो V का क्या हो जाता है, दे हो जाता है, V का दे हो जाता है. ठीक है. और you जो है इसको second person pronoun बोलते हैं. You. It changes according to the listener. Changes according to listener. The listener बोलते हैं. अभी इंग्लिश हालांकि हम फॉलो नहीं करना चाहिए पूरी. It changes according to the listener. You का क्या हो सकता है,
आई हो सकता है, ही हो सकता है ना, हर हो सकता है, वगैरह वगैरह, दे भी हो सकता है, सॉरी ही लिख दिया, शी हो सकता है या दे भी हो सकता है। और वी भी हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन। और फिर ही शी, ये जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये इंपॉर्टेंट रूल है। सी, दिस वाज नंबर 1, दिस वाज नंबर 2, दिस वाज नंबर 3, ये नंबर 4। ही, शी, इट, दे या किसी का नेम नेवर चेंजेस, इसमें कोई चेंज नहीं आता। मैं आपको रूल समझाता हूं एग्जांपल पढ़ा पढ़ा के। सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको प्रोनाउन का एग्जांपल देता हूं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो यहां देखो एग्जांपल, सी द एग्जांपल, मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं आपको एक ही इसमें दोनों रूल्स के एग्जांपल्स देता हूं, पास्ट टेंस भी और चेंज ऑफ प्रोनाउन भी। जैसे he said I am busy, I am very busy। he said I am very busy, he said I am very busy। अब इसका इनडायरेक्ट, दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। रिमेंबर, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, बट एज वी स्टार्ट स्टडिंग एग्जांपल्स इन अ सीक्वेंस, जब मैं आपको एक ही टाइप के बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर दूंगा तो आपको अपने आप आ जाएगा। फिर मैं आपको 10-10 एग्जांपल्स होमवर्क भी दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, तो यू विल सॉल्व देम। क्लास में रहता था रेगुलर, तो आपसे 1 बाय 1 पूछता था स्टूडेंट से। सो सी, यहाँ क्या करेंगे हम, ही सेड, कॉमा की जगह दैट लगाएंगे हम। अब ये क्या है, आई, ही सेड, उसने बोला, कब, फ्राइडे, शुक्रवार को बोला। क्या बोला, आई एम वेरी बिजी, मैं हूं बहुत व्यस्त, मैं बहुत बिजी हूं। व्हेन डिड ही से दिस, ऑन फ्राइडे। एंड लेट अस सपोज टुडे इज सैटरडे। अब आज सैटरडे, उसने कल बोला था, पास्ट टेंस में बोला था, है ना। रिपोर्टिंग ऑफ सेड हमको क्या बता रहा है कि उसने फ्राइडे बोला, पास्ट टेंस में बोला, और आज उसी की बोली हुई बात हमको किसी को जाके सुनाना है। ठीक है, कल आपने किसी एक आदमी की बात सुनी, एक आदमी आपसे कह रहा था पास्ट टेंस में, कल बीते हुए पास्ट टेंस में, उसने कहा आई एम वेरी बिजी, उसने कहा मैं बहुत बिजी हूँ। आपने उसकी बात कल सुने फ्राइडे, और आज सैटरडे आके आप मुझे वो बात सुनाना चाहते हो, तो आप कैसे सुनाओगे उसे? आप बोलेंगे सर डू यू नो ही सेड दैट, आई एम बिजी नहीं बोलेंगे, बोलने वाला थोड़ी बिजी है, सुनने वाला, वो जिसने बोला था वो बिजी था। तो यू से ही सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी। बात को समझो, ये कब बोला उसने, ही सेड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे यानी पास्ट टेंस। ठीक है, ये बात उसने कहा, कब कहा, ही सेड दिस ऑन फ्राइडे, पास्ट टेंस। और फ्राइडे को उसने क्या बोला था, मैं हूं बहुत बिजी। और आज ये आप बात कब सुना रहे हो, रिपोर्टिंग ऑन सैटरडे, यानी आज, टुडे, आज सुना रहे हो आप ये बात। उसने कब बोला था, मान लो उसने फ्राइडे को बोला था, और आप कब सुना रहे ये बात, सैटरडे। रिपोर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी और को सुना रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, उसने बोला था, है ना। ही सेड की जगह किसी का नाम डाल दूं, हिमेश, और ये हिमेश सेड आई एम वेरी बिजी। तो आप ये किसको सुना रहे हैं, आप ये बात आके, यू आर narrating this to Ansar sir,
सैटरडे, टुडे, ठीक है। यू हर्ड हिमेश स्पीच ऑन फ्राइडे। आपने हिमेश का स्पीच कब सुने? फ्राइडे। आपने फ्राइडे यानी पास्ट टेंस, यस्टरडे। आपने हिमेश की बात कब सुने? फ्राइडे को सुने। क्या बोला हिमेश? आई एम वेरी बिजी। उसने कहा आई एम वेरी बिजी क्योंकि वो बिजी था फ्राइडे, तो उसने उस दिन के हिसाब से आई एम वेरी बिजी बोला। अब आप क्या कर रहे हो? यू आर नरेटिंग दिस टू अंसार सर ऑन सैटरडे, यानी आज। तो आप क्या करोगे? सर, अंसार सर, डू यू नो हिमेश सेड, हिमेश बोला दैट ही वाज वेरी बिजी। हिमेश बोला कल, है ना, हिमेश सेड ऑन फ्राइडे, हिमेश सेड ऑन फ्राइडे दैट ही वाज वेरी बिजी ऑन फ्राइडे, ही वाज वेरी बिजी ऑन फ्राइडे। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मीनिंग समझ लो क्या है। वी हैव टू चेंज द प्लेस एंड द टाइम। टाइम भी चेंज करना है। ही सेड, वहां सेड आ गया। हिमेश सेड आई एम वेरी बिजी, फ्राइडे बोला। हम सैटरडे किसको जाके क्या सुनाएंगे? कि बोलेंगे देखो देखो हिमेश सेड ऑन फ्राइडे दैट ही वॉज वेरी बिजी ऑन फ्राइडे। और आज तो सैटरडे, आज का नहीं होगा। तो यहाँ पर टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा। प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ? तो सी, इट वॉज आई, और यहाँ क्या होगा? ही। आई किसके लिए यूज हुआ था? हिमेश के लिए। और ही किसके लिए हो गया? हिमेश के लिए हो गया, ठीक है। ये हिमेश ने बोला था तो खुद के लिए, फॉर सेल्फ, फॉर सेल्फ खुद के लिए उसने यूज किया था। और हम ये यूज कर रहे हैं फॉर हिमेश, है ना। हिमेश ने बोला था तो अपने आप के लिए आई एम वेरी बिजी बोला था, मैं वेरी बिजी हूं। और हम हिमेश की बात किसी को सुना रहे तो हम अपने वजह से इसको मॉडिफाई कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। हम बोलेंगे हिमेश ने बोला था कि वो बिजी था, वो बिजी था, मैं नहीं बिजी हूं, हिमेश बिजी था। चलो ठीक है, ये सब में आपका दिमाग घूम रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे। मैं आपको अब एग्जांपल, रूल्स, पहले रूल्स लिखवा देता हूं, देन वी विल कम टू एग्जांपल्स। एंड रिमेंबर, थोड़ा सा देखकर ये नहीं समझना कि ओह इट्स वेरी डिफिकल्ट, दीज आर ओनली रूल्स। अभी हम जब इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना वन बाय वन ढेर सारे, तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा कोई लोग बस एक दिन पढ़ते और बोल देते दिस इज डिफिकल्ट, वी कांट स्टडी। हर एक ही दिन में कैसे डिसाइड कर लेते हैं? तो ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा के दे देता हूं पहले, देन वी विल डील विद द एग्जांपल्स। और एक बार एग्जांपल्स पढ़ना चालू हो गए तो समझ लो कहानी आसान हो गई। फिर हम खुद समझने लग जाते और समझाने भी लग जाते दूसरे फ्रेंड्स को। So let us write down the rules. This is the rule. Number 3. If the reporting verb is in the past tense, then the following changes are made. वो जितने लिखा था ना मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन वगैरह के रूल्स, उन सब के एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको वन बाय वन। देखो कौन से चेंजेस। दिस इज द डायरेक्ट स्पीच, और इधर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। सो व्हाइल कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, वी विल मेक द फॉलोइंग चेंजेस। कौन से? टेंस बदल देंगे हम। अगर प्रेजेंट टेंस दिया है, कोटेशन मार्क्स में जो वर्ब है उसका, तो प्रेजेंट टेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में। प्रेजेंट को लिख देते तो बेटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज्ड टू सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिर्फ रूल्स लिखते जाओ, जब एग्जांपल्स वाली क्लास चालू होंगी तब आपको सब कहानी समझ में आ जाएंगी। थोड़ा पेशेंस, सब्र होना जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस changes to past perfect,
नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस, नो चेंज। आपको ये मत पूछना सर पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, अगर आप पूछोगे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, ये पढ़ाते पढ़ाते मैं समझाऊंगा आपको पास्ट परफेक्ट वगैरह सब क्या होता है, टेंसेस भी इसी में हो जाएगा आपका। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, okay, and present perfect changes to past perfect, present perfect tense changes to past perfect, simple present, simple past, simple past, past perfect, past perfect no change, present continuous past continuous हो जाता है, past continuous का past perfect continuous हो जाता है, past perfect continuous का no change होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। और रूल नंबर 6, V1 अगर है प्रेजेंट टेंस का वर्ब तो ये V2 हो जाता है, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। रूल नंबर, दिस इज आई एम राइटिंग हियर डायरेक्ट स्पीच, एंड यहाँ दिस इज द इनडायरेक्ट स्पीच। दिख रहा है क्या आपको? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ आई एम शिफ्टिंग द कैमरा। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रूल नंबर 7, अगर यहाँ V2 दिया है तो यहाँ हो जाएगा हैड प्लस, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा उसका हैड प्लस V3। रूल नंबर 8, इज या एम या आर दिया है तो इधर जाके या तो वॉज हो जाएगा, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल रहेगा तो वर हो जाएगा। रूल नंबर 9, ठीक है। और अगर हैड प्लस V3 ऑलरेडी दिया है तो नो चेंज, समझाऊंगा ये सब चीजें समझाऊंगा मैं आपको। रूल नंबर 10, इधर विल दिया है तो इधर जाके वुड हो जाएगा, इधर शैल दिया है तो इधर जाके शुड हो जाएगा, कभी कभी वुड भी हो जाता है। और 12, इधर कैन दिया है तो इधर जाके कुड हो जाएगा, लेकिन ये सब कब होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो। नंबर 13, अगर इधर मे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके उसका माइट हो जाएगा। हाँ, मुझे कोई कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अगर इधर में वुड रह गया तो, या अगर इधर में शुड रह गया तो, और इधर में ऑलरेडी कुड रह गया तो, और ऑलरेडी इधर में अगर माइट रह गया तो क्या होगा? तो इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज, वैसे ही रहेगा वो, ठीक है। ये रूल्स हो गए, रूल 13 हो गए। अब मैं टाइम के बारे में भी आपको लिखवा के देता हूँ, नोट कर लो फर्स्ट, नोट डाउन दीज थिंग्स। मैं ये राइट हैंड साइड वाले आई एम गोइंग टू इरेज, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट वगैरह ये वाले मैं मिटाने जा रहा हूँ। सी कितने हो गए? 13। नंबर 14, टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुनाइट चेंजेस टू दैट नाइट। और क्यों चेंज होता है इसका भी रीजन मैं समझाऊंगा आपको। 16, टुमारो changes to the next day or the following day or the day after. Number 17, yesterday, अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं yesterday दिख रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो yesterday का हो जाएगा the previous day, the previous day or the day before, the day before, ये हो जाएगा। Alright, and number 18, today, tonight, tomorrow, yesterday, और फिर उसके बाद सिंपल रूल्स, दिस है तो दैट हो जाएगा फॉर टाइम, दिस सैटरडे तो दैट सैटरडे हो जाएगा। 18, 19, और दिस अगर है प्लेस के लिए तो द हो जाएगा।
for place. This is my room है तो वो this room है तो the room हो जाएगा. Number 20. Ago will change to before. Ago का before हो जाता है. दिखता है वहाँ का? हाँ. Ago will become before. Ago will change to before. लेफ्ट का हटा देते हैं अब लेफ्ट का मिटा देता हूँ मैं. राइट पे आप फोकस करो. रूल नंबर 21. दिस इज डायरेक्ट स्पीच और यहाँ है इनडायरेक्ट स्पीच. तो अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ आ गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाता है उसका, या एट दैट टाइम हो जाता है. देन और एट दैट टाइम. नंबर 22 दीज रहा तो उसका दोज हो जाता है. ठीक है. रूल नंबर 23. अगर V2 रहा तो हेड प्लस V3 हो जाता. अपन ने कर लिया शायद, है ना. V1 का V2 हो जाता है और V2 का हेड प्लस V3 हो जाता है. हाँ, और क्या चेंज करते हैं हम लोग. हियर का चेंज होके देयर हो जाता है. एंड ओल्ड इंग्लिश में हियर को हीदर बोलते थे. इन आर्किक इंग्लिश हियर वाज कॉल्ड हीदर एंड देयर वाज कॉल्ड दीदर. ठीक है. there and hither means here का there हो जाता है. so these are the rules we will follow. अब हम अपने एग्जाम्पल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. भले ही थोड़े से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे लेकिन आपके मन को शांति आ जाएंगी कि इट्स गुड दैट वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग दी एग्जाम्पल्स. so I am going to erase this. I'll pause the video for some time and I will erase everything and I will write down the first heading. Okay, let's start. So let's write the first heading. The first heading A. Assertive sentences and assertive sentences क्या होते हैं? जो अफर्मेटिव या नेगेटिव होते हैं. सी असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव ये यस बोलते हैं, है ना. पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यस वाली बात आती है. एंड दूसरे होते हैं नेगेटिव जिसमें नो आता है, नॉट आता है ना. ऐसे सेंटेंसेस होते हैं. इंग्लिश में कितने टाइप्स के सेंटेंसेस है बेसिकली? सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. असर्टिव सेंटेंसेस है जिन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं. ठीक है. नंबर 2 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं, फीलिंग ऑफ एंगर, सरप्राइज. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. एक्सक्लेमेटरी. तीसरा क्या है? तो तीसरा हमारे पास है इंपरेटिव सेंटेंसेस. जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वार्निंग हो, एडवाइस हो, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड नंबर 4 इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. हु आर यू? व्हाट इज योर फादर? कोई कंफ्यूज होता है सर व्हाट इज योर फादर भी? हाँ होता है ना. व्हाट इज योर फादर बाय प्रोफेशन? तो असर्टिव सेंटेंसेस. अब असर्टिव में भी हमारा फर्स्ट रूल क्या लिख रहे हैं? नंबर 1, simple present tense will change to simple past tense. Simple present tense in direct speech will change to, in indirect speech it will change to simple past tense. Simple present tense टाइम में चेंज हो जाएगा simple past tense. तो यानी simple is या am या are रहेगा अगर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? was या were हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर V1 रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा वर्ब का, तो इधर जाके V2 हो जाएगा. अब देखो, अब एग्जांपल्स हमारे चालू हो रहे हैं. लेट अस स्टार्ट स्टडीइंग द एग्जांपल्स. सो एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1. शी सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स. अब देखो शी क्या बोल रही है. चेंज ऑफ प्रोनाउन पे भी ध्यान देना. शी सेड
I am a mad girl. She said, I am a mad girl. This is direct speech. Example number 1, direct speech. And its indirect speech will be, तो we will write she said. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब said कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। जब ये पास्ट में रहा तो इधर का टेंस चेंज होता है क्या? ऑफ कोर्स चेंज होता है, वर्ब का टेंस चेंज हो जाएगा। she said का मतलब ही क्या? उसने पास्ट टेंस में बोली थी, और जब भी कोई पास्ट टेंस में बोलता तो इधर का भी टेंस बदलना, ये एक साथ नहीं होता। उसने बोली थी पास्ट टेंस में, मैं बीमार, मैं पागल लड़की हूँ। बोली थी और पागल हूँ और थी एक साथ नहीं आ सकता। सो इट विल बी she said that। अब देखो I किसके लिए यूज की थी उसने? she said, वो जो गर्ल है, she said, उसने बोली I am a mad girl, यानी कौन है पागल? किसके बारे में बात करी वो? ये I किसके लिए यूज करी उसने? खुद के लिए यूज करी। उसने जो I यूज करी वो अपने आप के लिए यूज की ना, तो हम क्या बोलेंगे उसको? she said that she। अब हम am नहीं बोलेंगे, हम was बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने बोली थी I am a mad girl, तो उस दिन पागल थी होंगी, हो सकता आज मर गई होंगी वो, या आज उसका पागलपन दूर हो गया होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? She said I am a mad girl, तो हम लिखेंगे she said that she was a mad girl. She was a mad girl. She was a mad girl. उसने बोली थी कि वो पागल लड़की थी। यहां देखो M का क्या हो गया? M का was हो गया। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है M, और ये was क्या है? पास्ट टेंस है। बराबर हो गया। उसने बोली थी और वो पागल थी, बोली थी पागल थी, लेकिन उसने उसके एग्जैक्ट वर्ड में हम निकालते हैं। उसने बोली थी कि उसके वर्ड्स क्या था? मैं पागल हूँ, उस दिन पागल थी वो। चलो आप भी पागल हो जाएंगे नहीं तो मेरी बातें सुन सुन के। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस अ नेम। Hassan said, Hassan said, Zainab is a good girl. Hassan said, Zainab is a good girl. These are the actual words spoken by Hassan. तो हम क्या कर देंगे? इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है हमको, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में यहां क्या हो जाएगा? हसन सेड, कॉमा की जगह दैट लगाते हैं, ठीक है? ये कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। सो हसन सेड दैट। अब जैनब नाम किसी का बदलता नहीं, आई का शी हो गया था, लेकिन जैनब नाम है तो नाम नहीं बदलता। यहां देखिए रूल चेंज ऑफ प्रोनाउन में लिखा था, मैंने नेम चेंज नहीं होता। देखो थोड़ा पीछे करो, लेक्चर को पीछे जाओ, चेंज ऑफ प्रोनाउन के वहां देखो मैंने लिखा था नेम चेंज नहीं होता, रूल नंबर 4। सो हसन सेड दैट ज़ैनब इज का क्या हो जाएगा? वाज अ गुड गर्ल, वाज अ गुड गर्ल। हसन ने कल बोला था कि ज़ैनब अच्छी लड़की है, अब आज कैसी लड़की है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन कल तो वो गुड गर्ल थी। Hassan said Zainab is a good girl. Hassan said that Zainab was a good girl. The next example, हम बहुत सारे examples पढ़ेंगे, don't worry. Number 3, direct speech. Lucy said. Lucy said. अब देखो नेक्स्ट पर्सन को भी इंट्रोड्यूस कर दूं क्या? कर देता हूं, नहीं करता हूं, रहने दो। लूसी हो गया ना, यहाँ लूसी को कर देते, लूसी सेड, ठीक है लिख देते। लूसी सेड आई लिव इन नागपुर, आई लिव इन नागपुर। लूसी सेड आई लिव इन नागपुर। अब देखो यहाँ पे एम था तो वॉज कर दिए थे हमने, अब ये लिव क्या है? V1 है, हम इसका क्या कर देंगे? V2। बाहर कुछ चेंज नहीं करना है, कोटेशन मार्क्स के अंदर ही सब कुछ करना है। सो दिस विल बी इनडायरेक्ट स्पीच एंड हमारा आंसर होगा लूसी सेड, कॉमा की जगह दैट लगाते। कब दैट लगाएंगे हम? असर्टिव सेंटेंस में कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, और उसका मतलब होता है की। लूसी बोली की। लूसी सेड दैट। अब आई किसके लिए लूसी ने यूज करी? आई लिव इन नागपुर, तो कौन रहता है नागपुर में? आई लिव इन नागपुर का मतलब क्या है? आई यानी कौन है यहाँ पर? आई लिव इन नागपुर यानी लूसी।
बिकॉज लूसी इज सेइंग दिस, लूसी सेड आई लिव इन नागपुर, यानी लूसी रहती है और आपने लूसी की बात सुन ली, है ना। लूसी आपके पास आई और आपको क्या बोली, एक्सक्यूज मी आई एम लूसी आई लिव इन नागपुर, तो आपने लूसी की बात सुन ली। और कब सुने आपने, फ्राइडे सुने लूसी की बात, और वही बात आप आके मुझे सुना रहे हो आज सैटरडे, तो आप क्या बोलोगे, अंसार सर डू यू नो, बोलूंगा व्हाट, आप बोलोगे सर लूसी सेड दैट, कौन लिव्ड इन नागपुर, लूसी, तो आप बोलेंगे सर लूसी लिव्ड इन नागपुर, और लूसी के लिए क्या बोलेंगे हम, शी बोलेंगे, क्योंकि लूसी नाम तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। सो लूसी सेड दैट शी, और लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, लिव का लिव्ड हो जाएगा इन नागपुर। लूसी ने बोली कि वो नागपुर में रहती थी, हो सकता आज कहीं और चले गए होंगे तो आज का नहीं मालूम हमको, लेकिन जब उसने बोली थी सेड, भूतकाल में पास्ट टेंस में जब उसने बोली थी तब वो नागपुर में रहती थी। लूसी सेड आई लिव इन नागपुर, लूसी ने बोली, कल की बात है, 8 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है, लूसी ने बोली कि मैं नागपुर में रहती हूँ, तो उस दिन बोली थी, उस दिन नागपुर में रहती थी। लूसी सेड दैट शी लिव्ड इन नागपुर व्हेन शी सेड दिस टू मी, जब उसने ये मुझे बताया उस समय वो नागपुर में रहती थी। लूसी सेड आई लिव इन नागपुर, तो क्या हो जाएगा, लूसी सेड दैट शी लिव्ड इन नागपुर। और बाप रे 51 पॉइंट समथिंग लेक्चर लंबा हो गया, चलो इसको 1 घंटे का कर ही देता हूँ और एग्जांपल्स देता हूँ। टॉपिक ऐसा है तो पढ़ाना भी ज़्यादा पड़ेगा। द फोर्थ एग्जाम्पल, George said, I play hockey. George said, I play hockey. What will be its indirect speech? George said, कॉमा की जगह that. अब I किसके लिए यूज किया उसने, खुद के लिए। I is the first person, वो अपने आप को बोल रहा है ना, I play hockey, मैं खेलता हूँ हॉकी। तो लेकिन हम किसी को जॉर्ज की ये बात सुना रहे है ना, इनडायरेक्ट स्पीच यानी चुगली करना, इधर की बात उधर लगाना। तो जॉर्ज ने हमको क्या बोला, I play hockey, और आपने जॉर्ज की ये बात सुन ली और आप जाके किसी और के पास ये बात सुनाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, जॉर्ज बोला था कि ही, वो खेलता है, he played hockey. George said that he played hockey. ऐसा हो जाएगा, जॉर्ज ने बोला था कि वो खेलता था हॉकी। नंबर 5, अब मैं सेकंड लिसनर को भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जैसे अमर said to रश्मि, हम नाम चेंज कर देते हैं, सी हम यहाँ कुछ और लिख देंगे। कटप्पा said to भल्लाल देव, कटप्पा said to भल्लाल देव, You hate Bahubali. Katappa said to Bhallal Dev, see Bhallal Dev is a villain. If you have watched that movie Bahubali, the beginning, or its part 2. So Katappa said to Bhallal Dev, you hate Bahubali. What will be the answer? The indirect speech will be, अब ध्यान रखो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ देखो सेड का क्या था, सेड था, इसके पहले सब एग्जांपल्स में सेड का सेड ही रखते थे हम, लेकिन व्हेन द लिसनर इज प्रेजेंट, किसको बोला उसने, भल्लाल देव को बोला, तो स्पीकर कौन है, कटप्पा, हु इज द लिसनर, भल्लाल देव। तो जब लिसनर प्रेजेंट हो, कोई सुनने वाला प्रेजेंट हो, हम किसी सुनने वाले को कोई कुछ बोल रहा है, तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है, याद रहेगा।
इफ द लिसनर इज प्रेजेंट सेड टू का टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा मालूम है? सी आई विल राइट द आंसर विद द ब्लू पेन। आई विल राइट कटप्पा टोल्ड भल्लाल देव दैट, है ना, ये नीचे का कॉमा इसकी जगह हम क्या लगाते हैं? दैट। कटप्पा सेड टू का क्या हुआ? टोल्ड। अगर सिर्फ रहता था कटप्पा सेड यू हेट बाहुबली तो सेड का सेड ही रहता था, लेकिन कटप्पा सेड टू भल्लाल देव मतलब लिसनर इज प्रेजेंट, तो लिसनर है तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है। ठीक है, कटप्पा टोल्ड भल्लाल देव दैट। अब यू, ये कटप्पा ने यू किसको बोला? कटप्पा सेड टू भल्लाल देव, कटप्पा ने भल्लाल देव से कहा तुम नफरत करते हो बाहुबली से। तो ये तुम किसको बोला उसने? किसके लिए तुम यूज किया? भल्लाल देव के लिए तुम यूज किया। इमेजिन करो, कटप्पा ने भल्लाल देव से कहा कि तुम नफरत करते हो बाहुबली से, और आपने ये मूवी में सुन लिया ये डायलॉग। समझो ये डायलॉग उस मूवी में है और आपने ये डायलॉग सुन लिया, और ये डायलॉग आके आप मुझे अंसार सर को सुना रहे हो। बोलेंगे सर पता है आपको? मैं बोलूंगा क्या हुआ? यू विल से सर पता है कटप्पा टोल्ड भल्लाल देव दैट ही, ये ही यानी क्या है? भल्लाल देव। ठीक है, ही यानी भल्लाल देव, ही का यहाँ मतलब क्या हो रहा है? ही यानी भल्लाल देव। हेट का हो जाएगा हेटेड बाहुबली। कटप्पा टोल्ड भल्लाल देव दैट ही हेटेड बाहुबली। कटप्पा टोल्ड भल्लाल देव दैट ही हेटेड बाहुबली। अंडरस्टूड? Katappa told Bhallal Dev that he hated Bahubali. Let's proceed to study the next example. ये ऐसा वाला और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, सेट टू वाला, लिसन वाला, एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। The next, अब कौन से नाम लाऊं मैं? अक्षरा said to, अक्षरा सेड टू, अक्षरा किसको बोल रही है? कौन रहता है? ओके लेट मी चेंज, मैं चेंज कर देता हूँ ना, अक्षरा की जगह मैं दूसरे कर देता हूँ। आप लोग को थोड़ा कार्टून भी तो आना चाहिए। Augie said to the cockroaches, Augie said to the cockroaches, Augie said to the cockroaches, you cheat too much, you cheat a lot. Augie said to cockroaches, you cheat a lot. ये cheat क्या है? Present tense. Hate क्या था? Present tense. और हमारा रूल क्या है? Present tense will change to past tense. Augie said to the cockroaches, you cheat a lot. क्या होगा आंसर? बताओ। Indirect speech. IDS indirect speech होगा। Augie said to का होगा told the cockroaches. Augie told the cockroaches that. अब यू किसको बोला? ऑगी ने यू किसको बोला? यू किसके लिए यूज हुआ? कॉकरोचेस के लिए। ऑगी यू किसके लिए यूज हुआ? कॉकरोचेस के लिए। मान लो आप कल फ्राइडे टीवी देख रहे थे और टीवी में ये कार्टून आ रहा था ऑगी एंड द कॉकरोचेस। आपने ये डायलॉग सुना, कौन सा? ऑगी सेड टू द कॉकरोचेस, और ऑगी ने क्या बोला? यू चीट अ लॉट। आपने ये बात सुन लिए, डायलॉग सुन लिए, और ये डायलॉग सुन के नेक्स्ट डे यानी आज सैटरडे आप ये डायलॉग अंसार सर को मुझे सुना रहे हो आके। तो आप क्या बोलेंगे पता है? अंसार सर डू यू नो? मैं बोलूँगा व्हाट? तो आप बोलेंगे सर ऑगी टोल्ड कॉकरोचेस दैट। ऑगी ने कॉकरोचेस को बोला कि दे चीटेड अ लॉट, वो बहुत चीटिंग करते हैं, है ना। दे चीटेड अ लॉट। यू का देखो क्या हो गया? दे। चीट का क्या हो गया? चीटेड अ लॉट। चीट का चीटेड क्यों हुआ बताओ? चीट का चीटेड क्यों हुआ? क्योंकि ये टोल्ड है, पास्ट टेंस है, सेड है। जब यहाँ भूत है तो इधर भी भूत हो जाएगा। पास्ट टेंस विल बी पास्ट टेंस, भूत का भूत, ठीक है। और ये यू यानी क्या है? दे। और ये दे का मतलब क्या है? कॉकरोचेस। दे का मतलब क्या है? कॉकरोचेस। ऑगी सेड टू द कॉकरोचेस, यू चीट अ लॉट। ऑगी टोल्ड द कॉकरोचेस दैट दे चीटेड अ लॉट। आई होप कि आपको कुछ थोड़ा आप समझने लग गया है।
आई होप कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा कहानी समझ में आएंगी और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडीज़, वी विल कंटिन्यू विद दीज एग्जाम्पल्स। मैं आपको सब कुछ समझा के ही रहूँगा और आप सब कुछ समझ के ही रहना। ठीक है, बाय बाय।